Good morning, dear students. Today we will discuss about a very important and very interesting topic of English grammar, that is modals. Now students, read these three sentences. May I come in? How dare you? I can lift this box. What these sentences show? These sentences show mood of the speaker, expressions and also tenses. Modals do the act of role play. They play different kinds of role such as permission, prohibition, request and many more. So today we will discuss about the different roles played by the modals. Our first modal is can. Can is used to show ability. Just for the example, I can lift this box means मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ. Means I am able to lift this box. So here can is showing the ability. Next role of the can is in informal permission. देखो स्टूडेंट्स, हम काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिन्हें यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, बट कैन जो है इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स जब हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पेरेंट्स से कोई परमिशन चाहते हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. Such as, can I borrow your pen? Okay, so this is an informal permission and we can use can here. Next modal is could. Could is the past of can. Means जहाँ पर भी हमें past यूज़ करना है can का, we will use could. हम could का यूज़ करेंगे. Next is for past ability. Means past की abilities को show करने के लिए हम could का यूज़ करेंगे. जैसे I could lift this box when I was young. Means जब मैं young age में था तो मैं इस box को उठा सकता था. Somehow he may not be able to lift that box now. फिलहाल हो सकता है वो उस box को उठा नहीं पाता हो. So past की abilities को show करने के लिए हम could का यूज़ करते हैं. Next is for polite request. जब हमें बहुत ज़्यादा polite होने की ज़रूरत होती है किसी request के लिए तो हम वहाँ पर could का यूज़ करते हैं. Suppose you need a permission from your boss or you need a leave from your boss. आपको अपने boss से छुट्टी चाहिए. So you need to be very polite. Okay, because it totally depends on the mood of the boss whether he will grant you leave or not. So what will you say? Sir, could you please allow me leave on Saturday? So could is used in polite request when it is uncertain that it would be accepted or not. Okay, our next modal is may. May is used in informal permission. Informal permission. May formal permissions में यूज़ किया जाता है. Means in the offices, institutes, schools with authority. Authority के साथ हम may का यूज़ करते हैं. Means आप लोगों को स्कूल में अगर परमिशन चाहिए टीचर से तो यू विल यूज़ मे. मे आई कम इन सर, मे आई गो, may I go to drink water, or in any offices or institutes we will use may for permission because it is a formal word. Okay students, next is wish or prayer. may का यूज़ हम करते हैं wish और prayer के लिए. For example, may God bless you. देखो स्टूडेंट्स, wish and prayer दो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं. wish जब हम विश करते हैं बट वी डोंट यूज़ गॉड वर्ड हियर, बट विशेज़ में हम गॉड वर्ड का यूज़ नहीं करते. बट इन प्रेयर वी यूज़ द वर्ड गॉड. हम गॉड वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे अगर आप किसी के लिए विश करते हो यू में से मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, बट गॉड वर्ड इज़ नॉट यूज्ड, सो वी कांट से इट अ प्रेयर. तो हम इसे प्रेयर नहीं बोल सकते. बट व्हेन वी यूज़ गॉड वर्ड इन द सेंटेंस इट इज़ अ प्रेयर. फॉर एग्जाम्पल, may God bless you. So this is a prayer. Next is strong possibility. For strong possibility जहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसी के काम के होने के, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की, then we will use may. For example, the sky is cloudy. It may rain today. Means अगर हमें बाहर स्काई में क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं तो चांसेस है कि बारिश हो सकती है.
सो वी कैन यूज़ मे हियर, हम यहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है काम के होने की। नेक्स्ट मॉडल इज माइट। माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मीन्स जहाँ पर भी हमें मे के पास्ट टेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट का। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइट पॉसिबिलिटी। स्लाइट मीन्स जहाँ पर किसी काम के होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी बहुत ही स्लाइट होती है, बहुत ही कम होती है। मीन्स इट माइट रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी। वी कांट टेल अबाउट द फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। सो यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। सो वी कैन यूज़ माइट हियर, जहाँ पर काम के कम होने की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर माइट का यूज़ होगा। नेक्स्ट मॉडल इज विल एंड शैल। विल एंड शैल आर बोथ यूज्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस की। एंड एज यू ऑल नो, will is used with all persons other than I and we, and shall is used with I and we, but in 3 cases it get reversed। ये 3 cases हैं जिनमें ये रिवर्स हो जाता है। मीन्स I और we के साथ we use shall, and I and we के साथ हम यूज़ करते हैं बाकी सारे आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं विल का, एंड अदर पर्सन्स के साथ वी विल यूज़ शैल। एंड द 3 केसेस आर थ्रेट, थ्रेट धमकी देने के लिए। सपोज विल से आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, तो ये होती है थ्रेट। एंड हमने यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ शैल। डिटर्मिनेशन, जहाँ पर श्योरिटी होती है, डेफिनेटली श्योरली हम कोई काम करके रहेंगे। जैसे आई विल श्योरली मीट यू, कि मैं पक्का तुमसे कल मिलूँगा या आज मिलूँगा। तो जहाँ पर काम को होने के लिए हम डिटरमाइंड होते हैं, मीन्स श्योरली हम किसी काम को करेंगे, वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ विल, अदर पर्सन्स के साथ शैल का यूज़। नेक्स्ट इज प्रोमिस। प्रोमिस मीन्स जब हम किसी से प्रॉमिस करना चाहते हैं कि पक्का मैं ये तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, वहाँ पर भी आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, अदर पर्सन्स के साथ शैल का यूज़। एज यू शैल गेट अ गिफ्ट टुमारो, मीन्स कल तुम्हें मैं गिफ्ट दे दूँगा। सो इट शोज़ प्रॉमिस, यहाँ पर प्रॉमिस शो किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग मॉडल्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।